تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے موضوعات اس طرح ہیں۔ وزیر اعظم تیسرے سالانہ بلومبرگ نیو اکنامی فورم میں خطبہ دیں گے۔ افغانستان نے 150 سے زیادہ پاکستانی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھارت بائیوٹیک نے کی ویکسین کے تیسرے مرحلے کی آزمائش شروع۔ مریم نواز کا عمران خان پر بڑا الزام، جیل کے باتھ روم میں بھی تھی مجھ پر نظر، لگائے تھے خفیہ کیمرے۔ پاکستان کا اعتراف، ممبئی کے 26/11 حملے میں شامل تھے لشکر طیبہ کے 11 دہشت گرد، اور نوواک جوکووچ نے پیٹ سامپراس کا ریکارڈ برابر کیا۔ وزیر اعظم تیسرے سالانہ بلومبرگ نیو اکنامی فورم میں خطبہ دیں گے۔ بلومبرگ نیو اکنامی فورم کو مائیکل بلومبرگ نے 2018 میں قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد تاریخی تبدیلی کے دور میں عالمی معیشت کو درپیش سنگین چیلنجوں کے بارے میں عملی حل نکالنے کی غرض سے بات چیت کرنے کے لیے رہنماؤں کا ایک گروپ تیار کرنا ہے۔ افتتاحی فورم سنگاپور میں منعقد ہوا تھا، جبکہ دوسری سالانہ فورم کی میزبانی بیجنگ میں کی گئی تھی۔ ان میٹنگوں میں وسیع موضوعات کا احاطہ کیا گیا، جن میں عالمی معیشت کے بندوبست، تجارت اور سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، شہری علاقے تیار کرنا، سرمایہ منڈی، آب و ہوا میں تبدیلی اور سب کی شمولیت شامل ہے۔ اس سال چونکہ عالمی معیشت کو کووڈ-19 عالمی وبا کے اثرات کا سامنا ہے، لہذا فورم میں معیشت میں جان ڈالنے اور مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان کی فوجوں نے ہلمند اور قندھار صوبوں میں کارروائی کے دوران 150 سے زیادہ پاکستانی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ افغانستان کی داخلی امور کی وزارت نے افغانستان کی فوجوں کے ساتھ حالیہ جھڑپوں میں مارے گئے طالبان دہشت گردوں کی فہرست جاری کی ہے۔ ہلمند میں 152 پاکستانی دہشت گرد مارے گئے۔ ہلمند اور قندھار صوبوں میں حملے کے دوران کم سے کم 55 طالبان کمانڈر ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے مطابق لگ بھگ 6500 پاکستانی دہشت گرد افغانستان میں سرگرم ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ بھارت بائیوٹیک نے کووڈ ویکسین کے تیسرے مرحلے کی آزمائش شروع کر دی ہے۔ تیسرے مرحلے کی آخری آزمائش میں بھارت کے 26,000 اداکاروں کو شامل کیا جائے گا۔ ICMR کے اشتراک سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 کے ٹیکے کے لیے کیا گیا سب سے بڑا کلینکل ٹرائل ہے۔ یہ کووڈ-19 ویکسین کی تاثیر جاننے کے لیے بھارت کا تیسرے مرحلے کا پہلا اور اب تک کا سب سے بڑا مطالعہ ہے۔ اس ٹرائل کو ctri.nic.in پر رجسٹر کیا گیا ہے اور بھارت کے ڈرگز کنٹرولر جنرل کی طرف سے اسے منظور کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف عمران خان پر یکے بعد دیگرے کئی الزامات لگا رہی ہیں۔ اب مریم نے کہا ہے کہ عمران خان ان سے اتنے زیادہ ڈر گئے تھے کہ انہوں نے جیل کی اس سیل کے باتھ روم میں خفیہ کیمرے لگا دیے تھے جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں ان دنوں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف عمران خان پر یکے بعد دیگرے کئی الزامات لگا رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں مریم نواز نے کہا، میں 2 بار جیل گئی ہوں۔ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اگر میں اس کے بارے میں بتانے لگوں تو یہاں کی حکومت اور حکام منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کوئی بھی خاتون جو پاکستان کی یا پھر کہیں اور کی ہو وہ کمزور نہیں ہے۔ آج میں جدوجہد کر رہی ہوں، اس لیے میں یہ نہیں دکھانا چاہتی کہ میں متاثر تھی۔ میں اسے لے کر رونا نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ غلط سلوک کیا گیا، لیکن میں یہ سچ ضرور دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ جیلوں میں خواتین کی حالت کیا ہے۔ مریم نے عمران خان کی حکومت کو خواتین مخالف بھی بتایا۔ بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کو پچھلے سال چودھری شوگر مل کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے مسلسل دباؤ بنانے پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ اس لیے ہی پاکستان نے 26/11 کے حملے میں شامل دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے بدھ کو اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان کی اقتصادی دارالحکومت ممبئی میں
हुए 26/11 दहशत गर्दाना हमले में पाकिस्तान के दहशत गर्दों का हाथ था। FIA ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मुंबई वाक़े ताज होटल पर हुए दहशत गर्दाना हमलों को लश्कर तैयबा के 11 दहशत गर्दों ने अंजाम दिया है। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक दरअसल हिंदुस्तान के मुसलसल दबाव बनाने पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने घुटने टेकने ही पड़े। इसलिए ही पाकिस्तान ने 26/11 के हमले में शामिल दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को मोस्ट वांटेड करार दे दिया है। पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने मोस्ट वांटेड की नई फहरिस्त तैयार की है और इस फहरिस्त में मुंबई के हमले में शामिल 11 दहशतगर्दों के नाम भी शामिल किए हैं। हमले में शामिल बोट खरीदने वाले दहशतगर्द मुल्तान के मोहम्मद अमजद खान अभी मुल्क में हैं। इस बात का पाकिस्तान ने एतराफ़ किया है। इस फहरिस्त में 26/11 हमलों को लेकर जानकारी दी गई कि ताज होटल में हुए दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने वाली कश्ती में 9 क्रू मेंबर थे। वादे है कि 26 नवंबर 2008 को दहशतगर्दों ने मुंबई के ताज होटल समेत 6 मकामात पर हमला कर दिया था। हमले में तकरीबन 160 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सबसे ज़्यादा लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में मारे गए, जबकि ताज होटल में 31 लोगों को दहशतगर्दों ने अपना निशाना बनाया। सर्बिया के मुमताज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को साल के इख्तिताम पर नंबर 1 खिलाड़ी की हैसियत बरकरार रखने पर ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। वो 6 मरतबा ये एजाज हासिल करने वाले टेनिस की तारीख में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले वो 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 में ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। सिर्फ पीट सैम्प्रास ने 1993 से 1998 तक के दरमियान 6 साल तक दर्जाबंदी में अव्वल मुकाम के साथ साल का इख्तिताम किया था। उर्दू न्यूज मैगजीन के तहत अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए आज की बात। चीन के मगरबी खत्ते सिंकियांग में आबाद लाखों अगौर मुसलमानों के खिलाफ चीनी हुकूमत के मजालिम की दास्तानें बराबर दुनिया के सामने आती रहती हैं, जिस पर दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग हुकूमत चीन के सामने अपनी तशवीश का इजहार भी करते रहे हैं। लेकिन आलम इंसानियत की तमाम शिकायतों, दरख्वास्तों और अपीलों के बावजूद चीन के रवैये में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हुई है। बल्कि सच्चाई ये है कि वो मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाकर अगौर मुसलमानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करता रहा है। अगर सच्चाई वही होती जो चीन की हुकूमत बताती है तो दुनिया उसकी हिमायत करती, क्योंकि दहशतगर्दी और मजहबी जुनून पसंदी की हिमायत कोई नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। दरअसल सिंकियांग खित्ते में यूरेनियम का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियाई तवानाई हासिल करने के लिए किया जाता है। चीन इस वक्त न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और वो इस मैदान में अपना साम्राज्य कायम करने की भी कोशिश कर रहा है। वहाँ अभी 44 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं और 18 ज़ेर तामीर हैं। न्यूक्लियाई तवानाई को तैयार करने में माहौलियात को जो नुकसान पहुंचता है वो तो है ही, जिन जगहों पर उसके प्लांट लगाए जाते हैं वहां की मुकामी आबादी की सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी फैलती है। यही वजह है कि इन न्यूक्लियाई प्लांटों के खिलाफ अगौरियों की मुजाहमत शुरू हुई। इस मुजाहमत का तोड़ करने के लिए एक तरफ हुकूमत चीन ने इस खित्ते के हान नस्ल के चीनियों को अगौरियों के खिलाफ वरगलाया और फिर अमन कानून कायम करने के नाम पर अगौरियों पर जुल्म ढाए, और दूसरी तरफ मजहबी बुनियाद परस्ती का तोड़ करने की आड़ में अगौर मर्दों और औरतों को इस्लाह के नाम पर ऐसे कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया है जिनमें जंगी कैदियों या मुल्क दुश्मन अनासिर को बतौर सजा रखा जाता है। खुद चीनी सरकार के दस्तावेजात से ये बात सामने आई है कि सिंकियांग में हजारों अगौर बच्चे बेसहारा हो गए हैं, क्योंकि उनके बाप या माँ या दोनों कैद में या कैंपों में डाल दिए गए हैं। अंदाजे के मुताबिक चीनी हुकाम ने 10 लाख से भी ज्यादा अगौर मुसलमानों को उन नाम निहाद इस्लाही कैंपों या कैद खानों में डाल रखा है। हुकूमत चीन अपनी इन जालिमाना पॉलिसियों के दिफा में ये कहती है कि ये वहाँ से गुर्बत खत्म करने और मजहबी बुनियाद परस्ती को खत्म करने के लिए है, लेकिन दुनिया की आंखों में वो कब तक धूल झोंकता रहेगा। अब से चंद रोज कबल मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट के अराकीन पर मुश्तमिल एक बैन अक़वामी इत्तेहाद ने बैन अक़वामी जराइम अदालत के सामने ये शिकायत रखी है कि हुकूमत चीन के जरिए अगौरियों और तर्किश लोगों की मुबैना नस्ल कुशी के मामलात की जांच की जाए
और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शिकायतनामे को 16 मुमालिक के 60 से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट की ताईद हासिल है। इस शिकायतनामे में ये इल्जाम लगाया गया है कि हुकूमत चीन ऐगौर और दीगर तर्कश के खिलाफ जो इक़दामात कर रही है वो इंसानियत कुश और नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। शिकायत में ये भी कहा गया है कि इस बात के ढेरों सबूत मौजूद हैं कि संक्यांग खित्ते के ऐगोरियों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ संगीन मजालिम किए जा रहे हैं। चुनाचे बैनुल अक़वामी जराइम अदालत इन इल्ज़ामात की पूरी तरह तफ्तीश करे और अगर इल्ज़ामात सही साबित होते हैं तो गुनाहगारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने को यकीनी बनाए। वाज़ेह हो कि चीन की आमरीत के खिलाफ बनाया गया ये बैन अक़वामी इत्तेहाद एक आज़ाद, खुला और इंसाफ क़वानीन पर मुश्तमिल एक ऐसा बैन अक़वामी निज़ाम चाहता है जिसमें इंसान को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने के लिए साजगार माहौल मिल सके। बैनुल अक़वामी जराइम अदालत का क़याम अक़वाम मुत्तहदा की एक करारदाद के तहत 2002 में अमल में आया है और ये अदालत जंगी जराइम, इंसानियत कुश जराइम और नस्ल कुशी जैसे मजालिम की शिकायतों की तफ्तीश करती है और उसके मुजरिमों को सजाएं देती है। इसका दायरा अमल ज्यादा अहम तब बन जाता है जब किसी मुल्क का अपना निज़ाम उन मुजरिमों को सजा नहीं देता या देना ही नहीं चाहता, जैसा कि ऐगोरों के मामले में चीन का रवैया है। इत्तेफाक से इस वक्त अमेरिका में हुए सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है और जो बाइडन सदर मुंतखब हैं। चुनाचे ये नए अमरीकी सदर के लिए भी एक इम्तहान होगा कि वो दुनिया में इंसानी हुकूक के लिए क्या कर सकते हैं। उर्दू न्यूज मैगजीन में अभी आप सुन रहे थे आज की बात। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। उर्दू न्यूज मैगजीन में आइए अब सुनते हैं खबरनामा। रज़ी अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 12वीं ब्रिक्स छोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे और तीसरे सालाना ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करेंगे। बिहार में नौमुंतखबा कानून साज असम्बली का पहला इजलास 23 नवंबर से बुलाया जाएगा। 15वें माली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण को पेश कर दी है। कोविड-19 से सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 93.42% हो गई है और एशिया में शमसी तवानाई से चलने वाली पहली टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र के परभानी ज़िले में कायम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 12वीं ब्रिक्स छोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। रूस इस मीटिंग की मेज़बानी करेगा और ये वर्चुअल तरीके से होगी। आलमी इस्तेहकाम, मुश्तरका सलामती और इख्तराई तरक्की छोटी मीटिंग के मौज़ूआत हैं। 12वीं छोटी मीटिंग के दौरान रहनुमा ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताउन और आलमी मंजरनामे में अहम मामलों पर तबादले ख्याल करेंगे। इनमें कसीर जहती निज़ाम की इस्लाह शामिल है। रहनुमा कोविड-19 आलमी वबा के असरात को दूर करने, इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाई में ताउन, तिजारत, सेहत, तवानाई और आवाम से आवाम के दरमियान तबादलों के इक़दामात पर भी गौर करेंगे। भारत ब्रिक्स के चेयरमैन का ओहदा संभालेगा। भारत 2021 में 13वीं छोटी मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तीसरे सालाना ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में खुतबा देंगे। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को माइकल ब्लूमबर्ग ने 2018 में कायम किया था। इसका मकसद तारीख़ी तब्दीली के दौर में आलमी मईशत को दरपेश संगीन चैलेंजों के बारे में अमली हल निकालने की गरज से बातचीत करने के लिए रहनुमाओं का एक ग्रुप तैयार करना है। इफ्ताही फोरम सिंगापुर में मुनाकिद हुआ था, जबकि दूसरे सालाना फोरम की मेज़बानी बीजिंग में की गई थी। इन मीटिंगों में वसी मौज़ूआत का अहाता किया गया, जिनमें आलमी मईशत के बंदोबस्त, तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, शहरी इलाके तैयार करना, सरमाया मंडी, आबो हवा में तब्दीली और सबकी शमूलियत शामिल है। इस साल चूँकि आलमी मईशत को कोविड-19 आलमी वबा के असरात का सामना है, लिहाजा फोरम में मईशत में दोबारा जान डालने और मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। बिहार में नौमुंतखबा 17वीं रियासती कानून साज असम्बली का पहला इजलास 23 नवंबर से बुलाया जाएगा, जो इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। यह फैसला आज 9 तश्कील रियासती काबीना की पहली मीटिंग में किया गया। मीटिंग की सदारत वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की। काबीना मीटिंग में वज़ीरों की कौंसिल के सभी 14 अरकान मौजूद थे। यह मीटिंग पटना में वज़ीर आला के सेक्रेटेरिएट में हुई।
15वें माली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट की एक नकल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को पेश की। कोविड के दौर में माली कमीशन के उन्वान से इस रिपोर्ट में उस तनासुब का जिक्र किया गया है जिसमें आइंदा 5 बरस में मरकज़ और रियासतों के दरमियान टैक्सों की तकसीम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात के साथ ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेंगी। कमीशन के चेयरमैन और अरकान ने 2021-22 ता 2025-26 के लिए तैयार करदा रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को कल पेश की थी। इससे पहले कमीशन ने इस महीने की 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पेश की थी। इस रिपोर्ट को मरकज़, रियासती सरकारों, बल्दियाती इदारों, गुज़श्ता माली कमीशनों के चेयरमैनों और अरकान, कमीशन की मशावरती कौंसिल और दिगर मुतल्लिका माहिरीन, मारूफ तालीमी और दिगर इदारों से वसी मुज़ाकरात के बाद हतमी शक्ल दी गई है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 93.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 40,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत के मुताबिक सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की कुल तादाद बढ़कर 82,90,000 हो गई है। फ़िलहाल मुल्क में 4,53,000 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 29,164 नए मामलों की खबर मिली है, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीज़ों की कुल तादाद बढ़कर 88 लाख से ज़्यादा हो गई है। फ़िलहाल भारत में अमवात की शरह 1.47% है, जो दुनिया में सबसे कम शरहों में से एक है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे मरहले की आजमाइश शुरू कर दी है। तीसरे मरहले की आजमाइश में भारत के 26,000 रज़ाकारों को शामिल किया गया है। ICMR के इश्तराक से इसका एहतमाम किया गया है। भारत में कोविड-19 टीके के लिए किया गया यह सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। ये कोविड-19 वैक्सीन की तासीर जांचने के लिए भारत का तीसरे मरहले का पहला और अब तक का सबसे बड़ा मुताला है। इस ट्रायल को ctri.nic.in पर रजिस्टर किया गया है और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की तरफ से इसे मंजूर किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि शहर में कोविड मामलों में इजाफे के पेश नज़र शादी की तकरीबात में लोगों की तादाद को कम करने का फैसला किया गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शादी तकरीबात में सिर्फ 50 अफराद को शिरकत की इजाज़त देने का फैसला किया है। पहले यह हद मरकज़ी सरकार की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक 200 थी। उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। दाखिली उमूर की वजारत ने कहा है कि दिल्ली में तमाम प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करने के लिए कसीर जहती टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि कोविड-19 को फैलने से रोकने की गरज से कोविड के मरीज़ों की जांच और इलाज के लिए मरकज़ी वजारत दाखिला और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई मुख्तलिफ हिदायत की तामील की सूरत हाल की जांच की जा सके। वजारत ने कहा है कि ये टीमें फ़ौरन अपना दौरा शुरू करेंगी और वो खुसूसी तफसीलात के साथ 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्टें पेश करेंगी। महाराष्ट्र के परभनी ज़िले में शमसी तवानाई से चलने वाली एशिया की पहली कपड़ा मिल तैयार हो रही है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर ज़िले की ख़वातीन को रोज़गार फराहम होगा। जय भवानी ख़वातीन इमदाद बाहमी कपड़ा मिल एशिया में पहली ऐसी मिल होगी जो शमसी तवानाई से चलाई जाएगी। परभनी महाराष्ट्र में कपास पैदा करने वाला अहम ज़िला है। 100 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से ज़िले में सनअती शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। दिल्ली पुलिस के खुसूसी दस्ते ने जैश मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कौमी राजधानी में एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। अफसरान सराय काले खान इलाके से गिरफ्तार किए गए इन दहशतगर्दों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कल रात 10:15 बजे के करीब सराय काले खां में मिलेनियम पार्क के करीब जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। यह दोनों दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनके पास से नीम खुदकार पिस्तौलें और 10 कारामद कारतूस बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आफात के बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी ने कुपवाड़ा और बांदीपुरा ज़िलों के बालाई इलाकों के लिए बर्फ़ के तोदे गिरने के औसत दर्जे के ख़तरे की वार्निंग जारी की है। उसने ये भी कहा है कि बर्फ़ के तोदे गिरने के कम ख़तरे की वार्निंग बारामूला और गांदरबल ज़िलों के बालाई मकामात के लिए अब भी बरकरार है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियाती इक़दामात करें
اور برف کے تودے گرنے کے خطرے والے علاقوں میں نہ جائیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم آج صبح ٹوکیو پہنچ گئے۔ وہ اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے دوران تاریخی فوجی معاہدہ سر فہرست رہے گا۔ اس قدم کا مقصد جنوبی بحر چین اور بحر الکاہل میں موجود اقدام پر چین کے بڑھتے اثرات کو کم کرنا ہے۔ اس معاہدے میں آسٹریلیائی اور جاپانی افواج کی ایک دوسرے کی اراضی پر مشقوں کے بارے میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چین نے آج سے اس مہینے کے اخیر تک جنوبی بحر چین میں فوجی مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 12ویں برکس چھوٹی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور تیسرے سالانہ بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کریں گے۔ بہار میں نومنتخبہ قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 23 نومبر سے بلایا جائے گا۔ 15ویں مالی کمیشن نے اپنی رپورٹ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کو پیش کر دی ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یابی کی قومی شرح بڑھ کر 93.42% ہو گئی ہے، اور ایشیا میں شمسی توانائی سے چلنے والی پہلی ٹیکسٹائل مل مہاراشٹر کے پربھانی ضلع میں قائم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبر نامے کے ساتھ ہی آج کا اردو نیوز میگزین کا یہ شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔